Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. The videos here will definitely help you learn programming concepts in detail. The content here will be quite different from what you see over other channels. I shall try to cover every topic that is important from placements point of view, and it will surely help you gain good score in examinations as well. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. Welcome all to this session on operator overloading. Today we shall look at why operators need to be overloaded. We shall discuss it with the help of an example of Rupee class. This will be the class that we will be using for understanding the purpose, what is the need of operator overloading. And this class, Rupee class, you can see that it has one private data member, that is int r. It has two constructor functions. One is the default constructor initializing r to 0. The other one is initializing r with value x. Then traditionally we have two more functions, read value and show value for reading in display purpose. Now let us look at the main function. If you pay attention to the main function, we have shown you a statement written in bold. एक बड़े से में font में आपको R1++ दिखाया है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, what is R1? R1 is our object. Fine. R1 is an object of Rupee class. And after performing read operation over R1, मैंने लिखा R1.readWell. Once reading operation is over, the statement R1++, this statement is not going to work as of now. Why so? Because our operator ++, it knows how to manipulate data, that is normal variables. ++ को बताया गया है कि नॉर्मल इंटीजर या फ्लोट वेरिएबल पे जब आपको अप्लाई किया जाएगा तो यू आर सपोज टू डू द इंक्रीमेंट जॉब. मींस व्हाटएवर वैल्यू योर वेरिएबल हैज, इट शुड बी इंक्रीमेंटेड. बट in this statement here, writing R1++, my ++ operator has been imposed over an object. R1 is not integer variable. It is not any ordinary variable. It is a special variable which is in nothing but class object. तो class object के ऊपर जब आप ++ लगा देंगे तो compiler आपको error दे देगा. Then question is, why we are writing this statement? What is the purpose? Basically what I want is, whatever value is there in R1, I want that value to be incremented. Initially your R1.r holds value 0, but since you call this read function, readWell function, what this will do is it will prompt you to specify some rupee value. Let us assume that you entered 10 rupees. Means while reading you've entered a value 10 that gets stored in R. मतलब R1.r में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा. उसके बाद जब आप R1++ कर रहे हैं तो आप यहां चाहते क्या हैं? मैं क्या चाहता हूं या आप क्या चाहते होंगे कि R1.r में जो 10 था वो 11 हो जाए, ताकि मैं उसको शो करूं तो स्क्रीन पे 10 की जगह क्या नजर आए? 11 नजर आए. मगर बेटा ये अपने आप नहीं होने वाला. ++ ऑपरेटर, आई एम सॉरी टू से, डज नॉट नो हाउ टू डील विथ क्लास ऑब्जेक्ट्स. उसको नहीं पता कि R1 के साथ उसको क्या करना है. उसको ये काम आपको सिखाना पड़ेगा. देयर इज नो प्रोविजन. ++ does not know how to work with objects. So it is our duty to teach this thing to the operator. हम ++ को ये सिखाएंगे कि काम कैसे करना है. मतलब one work you already know how to work with basic intrinsic types, integer, float, double, इनके साथ आपको काम आता है. ++ करना आपको सिखाया गया है. But one more work, one other type of work I will teach you, that whenever I apply you over class object, how you should behave. तो मैं उसका काम बढ़ा रहा हूं ना. काम बढ़ा रहा हूं को क्या बोलेंगे? ओवरलोड कर रहा हूं. मैं ++ ऑपरेटर को एक नई चीज सिखा रहा हूं. 10 काम उसको आते थे, 11वां काम मैं सिखा रहा हूं. दिस इज व्हाट इज नोन एज ओवरलोडिंग. तो मैं ++ को ओवरलोड करना चाहता हूं. ठीक है. नाउ सम स्टूडेंट्स में से, सर why can't we build a function increment and we can call that function R1.increment. हम अपनी क्लास में readWell, showWell के साथ साथ एक इंक्रीमेंट फंक्शन डाल देते हैं और यहां पे उसको कॉल कर लेंगे R1.increment.
तो मेरा जवाब है बिल्कुल सही बात है बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मगर इफ यू क्रिएट इंटीजर वेरिएबल एक्स, क्या आप उस एक्स को बढ़ाने के लिए फंक्शन बनाना चाहते हैं, या आप लिखना चाहते हैं एक्स प्लस प्लस? आप एक्स प्लस प्लस लिखना चाहोगे, ना कि इंक्रीमेंट फंक्शन बनाना चाहो। तो मैं भी यही चाहता हूं कि जिस तरह से मैं एक इंटीजर वेरिएबल पे प्लस प्लस लगा सकता हूं, तो आई शुड बी अलाउड टू पुट प्लस प्लस ओवर माई क्लास ऑब्जेक्ट्स। मैं अपने क्लास ऑब्जेक्ट पे भी वो प्लस प्लस लगा सकूं, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, इसलिए हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग सीखनी होगी। Am I clear? On we have this definition, the ability to provide the operators a special meaning for new user defined data types is known as operator overloading. This is bookish definition. I will try to explain this definition. I'll try to make this definition simple to understand. ये कह रहा है कि जो existing operators हैं उनको एक special meaning मतलब एक नई definition provide करना। What we want is, we want our plus plus operator and other operators to learn new things. वो नई चीजें सीखें और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे काम करना सीखें। नई चीजों में क्या सीखें? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे कैसे काम किया जाता है वो सीखें। दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, इनबिल्ट यानी बिल्ट इन बोल लीजिए, जो बने बनाए मिलते हैं, इंट, कैर, फ्लोट। इंट पे काम जानता है वो। यूजर डिफाइंड कौन से होते हैं? योर क्लासेस। वी ऑल नो दैट क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास पे काम कैसे करना है ये उसको सिखाना इज द मोटिव बिहाइंड। तो डेफिनेशन आई थिंक शुड बी क्लियर टू ऑल। Purpose I have explained with the help of this code. This statement directly is not going to work. ये काम नहीं करेगा। आप चला के देख लीजिएगा, आपके कंपाइलर पे ये वर्क नहीं करेगा। अब इसको वर्क कराने के लिए, इसको वर्केबल बनाने के लिए हमें प्लस प्लस को ओवरलोड करना सीखना है। मतलब नाउ वी नीड टू लुक एट द सिंटेक्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो लेट अस मूव फर्दर। हियर वी हैव ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Let us read out the points that are there on the screen. It enables C++ operators to work with class objects. ये आपको बताया, ऑपरेटर क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे कैसे काम करना है ये चीजें सीख जाएंगे। Using traditional operators with user defined objects is the motive. It requires great care. When overloading is misused, program becomes difficult to understand. ओवरलोडिंग गलत तरीके से कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। गलत तरीके से क्या मतलब है? आप देखो, व्हाट इज द जॉब ऑफ प्लस प्लस? व्हाट इज द बेसिक जॉब ऑफ प्लस प्लस? इट्स बेसिक जॉब इज इंक्रीमेंट, बढ़ाना, चीजों को बढ़ाना। 10 हो तो 11 बनाना, 11 हो तो 12 बनाना, -10 हो तो +1 करके -9 बना देना। ठीक है, ये उसका बेसिक काम है। मगर अगर आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम लिखें तो प्लस प्लस और हो वो डिक्रीमेंट, देखो कर तो सकते हो। आप प्लस प्लस को क्या कर सकते हो कि जब कोई प्लस प्लस लिखेगा तो अंदर काम क्या होगा? माइनस माइनस। मगर इट मेक्स नो सेंस। आप अपने काम को आसान बनाने आए हो या अपनी चीजों को और डिफिकल्ट बनाने आए हो? आप ऐसे उल्टे काम करके जाओगे तो जो बाद में आपके कोड को मैनेज करने आएगा उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। वो कभी भी नहीं सोचेगा कि प्लस प्लस को आपने माइनस माइनस के लिए ओवरलोड किया है ना? तो प्लस प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग में we will teach plus plus how to move ahead, how to increment the value rather than teaching plus plus how to decrement things. तो उल्टा काम नहीं करना है। Now examples of already overloaded operators, ये बहुत अच्छी बात है। देखो सब लोगों ने देखा होगा ये लेस देन ऑपरेटर जो होता है ये किसके साथ यूज करते हो? सी आउट के साथ। और इसको क्या बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर। बिकॉज सी आउट, व्हाट इज द जॉब ऑफ सी आउट? Job of cout is to insert a message on the screen, put a message on the screen. तो put के उल्टा मैंने word क्या बोला था पहले? Insert a message on the screen. So cout uses less than operator and it is known as insertion operator. ठीक है, मगर ये insertion operator अगर याद करोगे C लैंग्वेज तो आपको shift operator के रूप में पढ़ाया गया था, left shift operator। ये क्या करता है? आपका वेरिएबल अगर मान लो x इक्वल्स टू 10 हो तो 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उस 10 की जो बाइनरी डिजिट्स आई हैं उनको शिफ्ट कराने का काम कर सकता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ऐसा करने से वैल्यू चेंज हो जाती है। सो
अगर किसी ने ये काम पहले नहीं पढ़ा था तो आई वुड सजेस्ट प्लीज गो थ्रू द वर्किंग ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये सिर्फ सी आउट के साथ ही नहीं चलता है, ठीक है। अकेला लगता है तो लेस देन का काम करेगा, 2 बार साथ लग जाएंगे तो सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर भी बन जाता है। जब किसी वेरिएबल पे लगता है तो उसकी वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करने के काम में आता है। मतलब ये एक से ज्यादा काम करना जानता है, इट इज ऑलरेडी ओवरलोडेड। लुक एट द ऑपरेटर प्लस, योर प्लस ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर, these are also overloaded. Why overloaded? Because if I write x equals to y plus z, तो ये क्या है, प्लस कैसा है, बाइनरी है। आई एम अप्लाइंग प्लस ओवर 2 ऑपरेंड्स, x इज इक्वल टू y प्लस z, तो y और z दोनों के बीच में लगा तो बाइनरी बिहेवियर। और अगर मैं लिखूं x इक्वल्स टू प्लस वाई, क्या मतलब, y की वैल्यू को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। दो, इसका कोई खास पर्पस नहीं है, y जैसा होगा वैसा ही रहेगा, मगर यू कैन ऑलवेज राइट दिस कोड, कंपाइलर विल नेवर ऑब्स्ट्रक्ट यू फ्रॉम राइटिंग, विल नेवर मेक एनी ऑब्जेक्शंस। तो प्लस यूनरी भी होता है, प्लस बाइनरी बिहेवियर भी शो करता है। माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, माइनस किसी वेरिएबल के साइन को फ्लिप करने के लिए भी होता है। वी कैन यूज माइनस ऑपरेटर इन 2 ways, either to perform subtraction, that is basic mathematical operation, or you can use minus operator to negate a value, ठीक है। x equals to minus of x क्या करेगा, x की वैल्यू को नेगेट करके x में रख देगा। तो कुछ ऑपरेटर्स अपने आप में भी ओवरलोडेड हैं, मगर इनको और नया काम भी सिखा सकते हो। तो कंपाइलर जनरेट्स एप्रोप्रिएट कोड बेस्ड ऑन द मैनर इन विच द ऑपरेटर इज यूज्ड। जैसा काम आप करने के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, कंपाइलर देख लेता है कि ये लेस देन सी आउट के बगल से लिखा है तो क्या करना है, लेस देन ऑपरेटर किसी वेरिएबल के साथ लिखा है तो कुछ और करना है। और कंपाइलर इस चीज को पहचान के अपने आप काम करना जानता है, उसको ऐसा डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे, आई थिंक ये क्लियर होंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ overloading an operator. Overloading an operator, we need to write a special function. We need to add a function to the class. The general syntax of the function is here on the slide. स्लाइड पे आप देख सकते हो, आपको एक फंक्शन अपनी क्लास में जोड़ना होता है जो आपके ऑपरेटर को एक नए तरीके का काम सिखाएगा, ठीक है। वो कैसे बनता है वो अभी हम आगे स्लाइड्स में देखने ही वाले हैं। अभी यहाँ पे स्लाइड में क्या है, जस्ट उसको पढ़ लेते हैं, then we will try to understand things with the help of an example. So we need to write a function definition as normal, ये आपको बताया। अच्छा, एक चीज जो याद रखनी है कि आपके फंक्शन का नाम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जब भी किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो फंक्शन का नाम क्या रहेगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर इज अ कीवर्ड इन C++, ठीक है। अब सवाल यह है कि अगर आप प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो पूरा नाम हो जाएगा ऑपरेटर प्लस। आप पॉइंट नंबर 3 पे देख सकते हैं, इट इज क्लियरली रिटन दैट इफ यू आर ओवरलोडिंग बाइनरी प्लस यू विल राइट ऑपरेटर प्लस, इफ यू विश टू ओवरलोड प्लस प्लस तो यू विल राइट ऑपरेटर प्लस प्लस। आप स्टार ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑपरेटर स्टार। माइनस को ओवरलोड करेंगे तो ऑपरेटर माइनस, स्लैश को ओवरलोड करेंगे तो ऑपरेटर स्लैश, ठीक है। जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे ऑपरेटर कीवर्ड के साथ उस ऑपरेटर को लिख दिया करेंगे तो पूरा नाम बन जाएगा। तो फंक्शन नेम विल ऑलवेज स्टार्ट विद द कीवर्ड ऑपरेटर फॉलोड बाय द ऑपरेटर विच वी फील लाइक ओवरलोडिंग, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द जनरल सिंटैक्स। जनरल सिंटैक्स सेज your operator and the operator which you are going to overload, it will for sure have some return type, it will definitely belong to a class। तो क्लास क्यों, क्योंकि आप ऑपरेटर को क्लास के साथ काम करना सिखाना चाहते हैं ना। एंड यू मे हैव आर्ग्यूमेंट लिस्ट, दिस इज ऑप्शनल, इट डिपेंड्स आप क्या ओवरलोड कर रहे हैं, किस तरीके से ओवरलोडिंग कर रहे हैं, वेदर यू आर ओवरलोडिंग योर ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। ये कभी होगा कभी नहीं होगा, आगे समझेंगे, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगी चीजें, बिलीव मी। अभी जनरल सिंटेक्स को बस देखते जाइए, फिर फंक्शन की बॉडी होती है, ये आप सब जानते हैं। ओपी, वेयर ओपी इज द ऑपरेटर बीइंग ओवरलोडेड। तो ऑपरेटर के साथ क्या बोला था, हमेशा वो ऑपरेटर लिखा करेंगे जिसे ओवरलोड करना है।
जो अटेंटिव हैं, मेरी गारंटी है कि एग्जाम वाले दिन आपको रात भर जाग के पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। ये एक टेबल है बेटा, इतने ही ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस में होते हैं। ऊपर वाला टेबल कहता है कि इनमें से किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है, एंड द टेबल बिलो शोज ये ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होंगे। फाइन। इन द टेबल नंबर 1 it shows the operators which we can actually overload, but the table below it shows us 4 operators which we cannot overload। ठीक है, डॉट ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो पाएगा, डॉट स्टार नहीं होगा, स्कोप, रेजोल्यूशन, टर्नरी ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर्स, दीज आर द 4 ऑपरेटर्स which we cannot overload, else all others can be overloaded। और हम तकरीबन सभी का काम सीख लेंगे, मैं आपको सारे का काम सिखा दूंगा यहां पे। There are certain things which we need to keep in mind always while overloading operators. First thing is, precedence of an operator cannot be altered. You cannot change the precedence. Precedence, I mean priority. We all know the highest priority is shared by few operators, then there are others down the line. Priority मतलब अगर एक expression में बहुत सारे ऑपरेटर्स लिखे होंगे तो कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा, इस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपका स्टार ऑपरेटर की प्रायोरिटी प्लस के कंपैरिजन में हाई होगी तो मैं इसे चेंज नहीं कर पाऊंगा। प्लस प्लस की हाईएस्ट होगी, मैं प्लस को ऐसे ओवरलोड नहीं कर सकता कि वो प्लस प्लस से ज्यादा प्रायोरिटी पा जाए। ओवरलोडिंग में आप काम करना तो सिखा सकते हैं, बट यू कैनॉट ऑल्टर, यू कैनॉट चेंज द डिफॉल्ट प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। Even the arity of operators cannot be changed. Unary operators remain unary, binary operators remain binary. जो ऑपरेटर बाइनरी है उसको यूनरी नहीं बनाया जा सकता, और जो यूनरी है उसको बाइनरी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हाँ कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट यूनरी भी हैं और बाइनरी भी हैं, उनके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, न्यू ऑपरेटर्स कैनॉट बी क्रिएटेड। इसका क्या मतलब है? You all know there are some special symbols available in dictionary. Special symbols like heart. Heart shape होता है ना, ऐसा सिंबल भी होता है आज का ही चार्ट में। अब आप कहो कि जो C++ के ऑपरेटर्स उसमें मैं हार्ट को भी जोड़ देता हूं, ओवरलोड करा दूंगा, और जब हार्ट को ही लगाएगा तो वो एडिशन का काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो ऑपरेटर्स C++ में मिले हैं, जो पीछे टेबल्स में आपने देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं के साथ ओवरलोडिंग कर सकते हैं। आप कोई नए ऑपरेटर का नए सिंबल को इन्वेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नो ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स फॉर बिल्ट इन टाइप्स। यू कैनॉट चेंज हाउ टू इंटीजर्स आर एडेड। प्लस को जो बेसिक काम सिखाया हुआ है ना कि 2 + 3 को 5 बोलना, आप चाहो कि मैं उसको चेंज कर दूं, वो 2 + 3 को 5 की जगह पे कुछ और बोलने लग जाए, ये आप नहीं कर पाओगे। Then, as mentioned, this operator overloading can be done using member functions as well as non-member functions, यानी friends के थ्रू भी हो जाएगा। हम ये भी सीखेंगे, अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको फ्रेंड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पहले सीखना होगा। ठीक है, 2 तरीके से ओवरलोडिंग हो जाएगी। आप ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का मेंबर भी बना सकते हो, दैट इज मेंबर फंक्शन, और यू कैन ओवरलोड द ऑपरेटर्स यूजिंग फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट ओवरलोडिंग द ऑपरेटर्स वन बाय वन। So we'll first of all look at unary operator overloading. Unary operator means operators that are applied over one operand. जो एक ऑपरेंड पे काम करते हैं उनको यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन से होते हैं यूनरी ऑपरेटर। So let us look at an example. This example is about overloading minus sign. ये माइनस जो है ये बाइनरी भी होता है, माइनस यूनरी भी होता है। समझने के लिए यहां पे देखिए, आप अगर स्पेस नाम का पहला फंक्शन देखें तो उसमें स्टेटमेंट है x इज इक्वल्स टू -x। तो माइनस साइन कितने ऑपरेंड्स पे लगा? सिंगल ऑपरेंड x पे ही लगा है बस वो। सिमिलरली अदर स्टेटमेंट सेज आवर माइनस इज इंपोज्ड ओवर ओनली वन ऑपरेंड, दैट इज y, and on the third statement we can see minus is applied over one operand again, that is z। इसीलिए मैं कह रहा हूं यूनरी। यूनरी मतलब एक ऑपरेंड पे काम करने वाला।
चलिए, सो देखते हैं क्या है ये स्पेस क्लास. वी ऑल नो देयर इज अ 3D स्पेस and that 3D space can be represented using 3 dimensions x, y and z, x axis, y axis and z axis. तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई स्पेस. In the private section we have data members x, y, z. Then in the public section we can always have functions, and the most important functions are our constructor functions. So recall constructors. I mentioned while teaching constructors, this constructor has the same name as that of class, means नाम उसका space ही होगा. If round brackets are empty, it means it is a default constructor. Its job is to initialize x, y, z to some legal initial value, which in this case is 0. 0 लेना कोई must and should नहीं है. आप 0 की जगह 1, 2 जो वैल्यू पसंद आए आप वो वैल्यू ले सकते हैं. Then the second constructor that is shown here with 3 variables a, b and c, means it is a 3 argument constructor. 3 arguments will be supplied from the main function. They will come here in a, b and c. A will be moved to x, b will be used to initialize y, c will be initializing z. Similarly, we have third constructor with 1 value. Whatever value it brings in will be moved to x, y, z. मतलब x और y और z में तीनों में सेम वैल्यू, बराबर वैल्यू v आ जाएगी. तो 3 कंस्ट्रक्टर्स यहां पे बने हैं. देन वी हैव अ सेट वैल्यू फंक्शन. ये काफी हद तक 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के जैसा दिखता है. फर्क सिर्फ ये है, कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. सेट वैल्यू इज नॉट ऑटोमेटिकली कॉल्ड. You can call it whenever you feel like. Whenever you feel like changing values of x, y and z, just give a call to this set val. It is your duty to call this function. Calling this is not your duty. Compiler will do this. Then we have a show function. Simply it displays the values on the screen. The last line we have void operator minus round brackets. ये वो फंक्शन है जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के काम आएगा. मैंने इस फंक्शन को यहां पे डिक्लेयर किया है, डिफाइन यहां नहीं किया है. क्यों नहीं किया भाई? सिंपल सी बात है. यहां पे जगह दिख रही है आपको, मैं कहां लिखता है इसको, इसलिए मैंने यहां डिक्लेयर कर दिया. डिफाइन क्लास के बाहर किया. दूसरा मोटिव आपको फिर से ये चीज याद कराना कि क्लास में फंक्शंस डिक्लेयर हो सकते हैं, डिफाइन बाहर किए जा सकते हैं. और अगर ऐसा करते हैं तो सिंटेक्स क्या होता है, हमें लिखना होगा रिटर्न टाइप, देन वी नीड टू राइट द क्लास का नाम, क्लास नेम, वी राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड वी डू द जॉब. इस ऑपरेटर माइनस का काम क्या है उसको समझने के लिए मेन में चलते हैं. इन मेन वी हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स S1, S2 एंड S3. S1 को बनाते समय कौन सा कंस्ट्रक्टर काम में आएगा? हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स यू हैव पास्ड इन? ओनली 1. तो विच कंस्ट्रक्टर विल कम इनटू एक्शन? दिस वन. V में वैल्यू आएगी. V में क्या वैल्यू आएगी? 10. तो आपका x, y और z 10, 10, 10, -10, -10, -10 से इनिशियलाइज हो जाएगा. और यहां पे S2 का x, S2 का y, S2 का z will have value 10. And for the third object, what values we are going to use? 0, 0, 0. क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. डिफॉल्ट क्यों? क्योंकि कुछ भेजा नहीं. ठीक है. नाउ आफ्टर क्लियर स्क्रीन जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट -S1. -S1 से मेरा क्या मतलब है? S1 के अंदर जो समान हो, x, y, z में जो भी वैल्यू हो, उस वैल्यू के साइन को चेंज कर दो, फ्लिप कर दो. if the value available there is a negative value, make it positive. If it is a positive value, make it negative. अब मुझे बताओ S1 में कैसी वैल्यू है? -10, -10, -10. ऊपर देखो S1. You have supplied माइनस वैल्यू, मीन्स x में भी माइनस, y में भी माइनस और z में भी माइनस है. मैं उसके साइन को चेंज करना चाहता हूं तो मैंने क्या लिखा? -S1. मगर अगर मेरा ऑपरेटर फंक्शन जो कि ऊपर बना है ना हो तो एरर आ जाता. मगर अभी एरर नहीं आएगा. एरर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि whenever you write -S1, कंपाइलर क्या समझेगा? कंपाइलर कहेगा ये माइनस एक ऑब्जेक्ट पे लगा दिया गया है, तो वो समझेगा कि आप ऑब्जेक्ट पे जब माइनस लगा रहे हैं तो आपने ये काम के लिए ऑपरेटर फंक्शन बनाया होगा. तो योर कंपाइलर विल गो एंड लुक फॉर दिस फंक्शन, ऑपरेटर फंक्शन. ठीक है, वो इस फंक्शन को ढूंढने जाएगा और ये देखो ऊपर बना हुआ है. तो S1 ने जब इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया तो क्या काम होगा? S1 के x में
x की वैल्यू को नेगेट करके डाल दिया जाएगा, y में नेगेट करके और z में नेगेट करके डाल देंगे। मतलब जब आप s1 डॉट शो कॉल करेंगे बाद में, तो s1 का डाटा क्या हो जाएगा, 10 10 10। इंस्टेड ऑफ -10 -10 -10 it will become 10 10 and 10. Similarly, when you call this statement, कंपाइलर क्या समझेगा, आप माइनस को ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो। ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हुई है, मतलब आपने ऑपरेटर फंक्शन बनाया हुआ है। तो कंपाइलर विल लुक फॉर दिस फंक्शन, लुक फॉर द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन, वो अवेलेबल है, तो व्हाट जॉब इट विल डू, इट विल कॉल दिस फंक्शन, विल फ्लिप द वैल्यूज, स्टोर द वैल्यूज बैक, एंड व्हेन यू डिस्प्ले इट, s2.show will display -10 -10 and -10. Am I clear on this? If you have any questions, please ask. तो एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा Yes, दो। बिल्कुल देखिए। Tell me. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑपरेटर फंक्शन था उसको क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर किया जी और उसको बाहर हम लोगों ने डिफाइन किया और वॉइड उसमें उसके, अब अगर हम मेन में उस जब वो S1 ढूंढेगा -S1 देखेगा हम्म, तो वापस सीधा क्लास में जाएगा। वो पता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे देखिए अब सब लोग, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो -s1 लिखा है ना, इसका मतलब कंपाइलर क्या समझेगा, s1 डॉट ओ पी ई आर ए टी ओ आर माइनस वाला फंक्शन ढूंढो, वो इसका मतलब ये समझेगा। आपके -s1 को इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। सिमिलरली s2 डॉट ओ पी ई आर ए टी ओ आर माइनस ये, कंपाइलर के लिए -s1 इज समथिंग सिमिलर टू दिस। वो ढूंढेगा क्या s1 डॉट ऑपरेटर माइनस है, अगर बना है तो कॉल करो, वो यहां पे चला जाएगा, ऊपर कॉलिंग हो जाएगी, वैल्यूज फ्लिप हो जाएंगी। अभी समझ में आया? और कोई क्वेश्चन बिल्कुल पूछो, कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज पूछो। सर जो ये ऑपरेटर जो हमने वो ओवरलोडिंग वाला वॉइड स्पेस जो हमने वो अभी नया फंक्शन बनाया था, जी तो उसका सिंटैक्स ऑपरेटर से ही स्टार्ट होगा या फिर हम उसको मतलब यूजर डिफाइन रख सकते हैं? नहीं बेटा, आप स्लाइड अगर ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने क्या कहा, नाम हर हाल में ऑपरेटर से शुरू होगा, उसका नाम बनाते समय ऑपरेटर लिखना ही होगा। ऑपरेटर इज अ कीवर्ड, कंपाइलर इसके बिना काम नहीं करेगा। ऑपरेटर का ओ बड़ा कर दूं या स्पेलिंग गलत लिख दूं या कुछ और नाम लिख दूं, हर केस में एरर आएगा। आपको स्मॉल केस लेटर्स में ऑपरेटर लिखना है और उसके बगल में वो ऑपरेटर को लिखना है जिसे ओवरलोड करना चाहते हो। मैंने यहां पे देखो वही काम किया है, आई हैव रिटन OPERATOR एंड अ माइनस साइन। अगर मैं प्लस को ओवरलोड करता तो OPERATOR प्लस लिख देता। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। Any questions? Any type of question you can ask. मेरे ख्याल से टॉपिक कठिन नहीं है, समझ में आ रहा होगा, है ना? डिफिकल्ट लगे तो बताओ ताकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है ना? क्योंकि बेटा अगर आपने बताया नहीं कि सर नहीं समझ में आया, डिफिकल्ट है, और मैं आगे बढ़ता चला गया, तो मुझे तो चीजें आती हैं, मैं ये प्रिज्यूम कर लूं कि आपको भी आती हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप एग्जाम में क्या करोगे। इसलिए मेरा काम है जहां पे आपको जरूर लगे कि सर नहीं रुक जाओ, जल्दी मत करो, हम वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए लेट अस सी व्हाट इज देयर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखो, अब यहां पे एक रेड कलर में स्टेटमेंट दिखाया, पे अटेंशन हियर, in this particular code inside main I have a comment s2 equals to minus s1. Now this statement I have commented out because with my previous code, with my previous operator function, it will result into an error. Result into an error क्यों? आप देखो इसका क्या मतलब होगा। Whenever you write s2 equals to minus s1, don't you think your s2 is waiting for a value to be returned? यहां पे S2 एक वैल्यू के रिटर्न होने का इंतजार कर रहा है, ठीक है, और आपने जो पीछे ऑपरेटर फंक्शन बनाया है उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। आप कह रहे हो कि मैं वैल्यूज फ्लिप तो करूंगा, लौटाऊंगा कुछ नहीं, बस फ्लिप करके उसी ऑब्जेक्ट में रख दूंगा। जब आप कुछ लौटाओगे नहीं, रिटर्न टाइप वॉइड होगा, तो ये स्टेटमेंट काम करेगा क्या? ये काम नहीं करेगा। दिस स्टेटमेंट शोन इन रेड कलर फॉन्ट
and commented out will not work for the previous operator function. Means we need to modify our operator function so that this statement starts working. क्योंकि जरूरत पड़ सकती है ना ऐसे काम की कि भाई जो कुछ भी S1 का समान है उसको फ्लिप अप करो, उसके साइन चेंज करो और वो समान S2 के अंदर डाल दो. मैं क्या चाहता हूं, नेगेट द वैल्यूज ऑफ S1, whatever values are there in S1, please change their sign, toggle the sign and store the values back to S2. S2 में लौटाओ. तो उसके लिए नीचे देखिए आपके ऑपरेटर फंक्शन को मैंने मॉडिफाई किया टू मेक द अबव कोड वर्केबल. रीमॉडिफाई द ऑपरेटर फंक्शन एज शोन बिलो. यहां पे देखो वॉइड की जगह क्या आ गया, रिटर्न टाइप आ गया. S2 किस चीज का इंतजार करेगा, ये इंतजार करेगा एक ऑब्जेक्ट के लौटने का, क्योंकि ये खुद एक ऑब्जेक्ट है. तो इक्वल टू के बगल से इसको इंटीजर थोड़ा दोगे. S2 इज वेटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न. तो क्लास का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, माई क्लास शुड बी केपेबल ऑफ रिटर्निंग ऑब्जेक्ट. भाई अब ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो डोंट यू थिंक यू नीड टू बिल्ड एन ऑब्जेक्ट, बनाओगे तभी तो लौटाओगे. तो मैंने क्या किया, यहां पे एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. आई हैव रिटन स्पेस टेम्प मींस व्हाट, क्रिएट अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट. टेम्प के एक्स में क्या डाल दो, S1 के एक्स को. देखो S1 कॉलिंग कौन करेगा, ये जो मैं फिर से आपको दिखाता हूं, इस स्टेटमेंट का मतलब कंपाइलर के लिए इसका क्या मतलब है उसको ध्यान से देखना. S2 इक्वल्स टू S1 डॉट OPERATOR माइनस साइन एंड पेरेंथेसिस सेमीकोलन. समझ में आ रहा है. इस तो आपने डबल स्पेस का और वो फिर डबल स्पेस आपने क्यों लिखी, वो नहीं समझ आया. अभी बता देते हैं. मेरे ख्याल से स्लाइड विजिबल है ना आपको. चलो S2 ये जो लिखा है S2 इक्वल्स टू माइनस S1, दिस इज इक्वल टू राइटिंग दिस थिंग. मतलब आप ये हटा दें और ये लिख दें, एक ही बात है. आप ये लिखो या आप ये लिखो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. S2 इक्वल्स टू माइनस S1 लिखेंगे तो कंपाइलर वो यही चीज समझने वाला है. अब जिसके पास ज्यादा टाइम हो वो S2 इक्वल टू S1 डॉट ऑपरेटर माइनस राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन ऐसा लिख लेना. जिसके पास टाइम ना हो वो ये शॉर्टकट लिख देना. दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही होती है. पहले तो ये समझो. दूसरी चीज है कि नीचे सर 2 बार स्पेस क्यों आया. देखो ये तो क्लास का नाम है ना, आपने फंक्शन क्लास में डिक्लेयर किया, बना बाहर रहे हो तो क्लास का नाम नहीं बताओगे कि किस क्लास का मेंबर है. दिस इज रिटर्न टाइप, दिस इज क्लास नेम. पीछे वाला फंक्शन देखो, रिटर्न टाइप क्लास नेम. क्लास नेम तो अभी भी है ना यहाँ पे. वॉइड की जगह पे रिटर्न टाइप भी स्पेस हो गया. स्पेस स्पेस 2 बार क्यों आया विवेक को अब ये बात समझ में आ गई होगी. दिस इज योर रिटर्न टाइप, दिस इज योर क्लास नेम एंड द फंक्शन विच वी वांट टू ओवरलोड. किया क्या, what we have done here is we have built a temporary object, we have flipped the values of the current object, stored it into temp and returned the temp. When you return temp, return वाला रास्ता खुला हुआ है. हमारी वैल्यूज को रिटर्न करने का रास्ता खुला हुआ है. यू कैन रिटर्न अ टेम्पररी वेरिएबल, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं. और वो रिटर्न ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, S2 में. ठीक है. इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल और नॉट. यस सर. यस सर. ओके गुड. तो माइनस सीख गए है ना. अभी फ्रेंड बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये माइनस सीख गए तो इतना ही बहुत है. बात समझ में आ गई. चलो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना. सर हमको नहीं आई कोई बात नहीं. अगर वो टेम्प में टेम्प अलग ऑब्जेक्ट था, उसमें अगर हम लोगों ने सारी वैल्यूज फ्लिप करके डाली तो वो S2 तक कैसे थे. बेटा आपने यहां से टेम्पररी ऑब्जेक्ट रिटर्न किया तो वो कहां लौटेगा, इक्वल टू साइन की राइट हैंड साइड पे आएगा ना. ये देखो ये जो लिखा है आपने, हाँ क्या सर, वो इसी जगह पे लौट के आएगा. जब इस जगह पे लौट के आएगा तो इक्वल टू उसको S2 में पहुंचा देगा. आ गया. आ गया. चलो गुड. Yes. एनी अदर क्वेश्चन. वो कितना आसान था देखो, बिल्कुल भी टफ नहीं है. पहली बार लग सकता है टफ है, एक बार इसको आप एग्जीक्यूट खुद करेंगे तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा. बस एक बार करके देखने वाली बात है. आप ये सोचेंगे कि सर ने कर दिया, सर ने शो कर दिया, मैं एग्जाम में कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा नहीं होगा. आपको इसको एग्जीक्यूट करना ही होगा. ठीक है. तो एक बार अपनी मशीन पे स्पेस क्लास बिल्ड कीजिए,
और ये जो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपको यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग समझ में आएगी। अभी हमने जो ओवरलोडिंग की है उसमें जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन है वो एक मेंबर फंक्शन है। वी हैव ओवरलोडेड द माइनस ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एज अ मेंबर फंक्शन, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू ओवरलोड इट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, so this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.